Hello, Shanti. Good evening. Welcome. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti भाई जी। Shanti, hope everyone had a beautiful day in Papa's remembrance. सुबह से लेकर ही आज तो स्मृति दिवस की बहुत सुंदर प्रेरणाएं भावने अमृत वेले भी दी, मुरली में भी और पूरे दिन भी, है ना। हिंदी इज बेटर फॉर एवरीवन, तो हिंदी में ही कर सकते हैं, और इंग्लिश इज बेटर। Any way is fine. So we'll mix and match, है ना, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश ऐसे करते हैं। So today we thought to explore the theme going beyond, staying beyond, यानी पार जाना और पार रहना, beyond. Today especially we are remembering Brahma Baba, who made this effort of staying beyond, परे रहना. And when we think of beyond, going beyond what? What is it that we want to go beyond? हम किसके पार जाना चाहते हैं, है ना। तो क्या समझते हैं, किसके पार जाना है? हद के। हद के पार, राइट। राइट। ऐसे देखे तो इट्स लाइक नो विल से गोइंग बियॉन्ड base thoughts, we'll say going beyond fears, we'll say going beyond doubts, right? We'll say going beyond illusions, going beyond likes and dislikes, right? So going beyond all these feelings or all these energies that bind the soul in the drama. So in sabhi se par, जैसे. So there are two words, one is to go beyond and the other is to stay beyond. तो पार जाना और फिर पार रहना. So you can go beyond, but it's then easy to come back also into the story. So if you really think deeply that, you know, जो भी हम इस शरीर के माध्यम से, है ना, देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी हम आत्मा इस दुनिया में है, तो शरीर के माध्यम से जो भी कुछ चल रहा है वही हमें रियल लगता है. और वही जैसे the recording which happens through the sense organs is what we feel is real. वो कहानी जैसे है, तो वो कहानी पर वो हमें रियल लगती है. और जैसे हम उस स्टोरी में जैसे अटक जाते हैं, तो अगर पूछे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो तुरंत हम बताएंगे दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ. पूछे कहाँ आप रहते हैं, तो तुरंत हम बताएंगे यहाँ हम रहते हैं. ये तो चलो फिर भी स्थूल बातें हैं, पर और भी जैसे गहराई से, जैसे ये सारा कि यू नो, जो बाबा कई बार कहते हैं मैं मेरा, ये अंदर तक जैसे आत्मा में बैठा हुआ है. एंड this reality that we feel, you know, which is actually based on whatever is the sense organs projecting on the mind, है ना. तो मन में जैसे इन सब का जैसे प्रभाव आता है और उस अनुसार हमें लगता है
कि ये रियल है। तो जितना हम आत्मा इसमें ट्रैप्ड रहते हैं, we say that is the root cause of all they will say fear कहे, डाउट कहे, वरी कहे, या कोई भी वेस्ट कहे, या पुराने संस्कार कहे जो एक्टिवेट कई बार हो जाते हैं. So all of that is rooted in this. And the reality is that we souls are beyond this. We are beyond this drama. So this drama, when we say what is drama, drama is this three-dimensional, we say, projection of the outer world through the sense organs onto the mind. Right? और वो जो कहानी है, वो जो रिकॉर्डेड हुई है, अपना सारा कुछ जो हमें लगता है कि मेरा यहाँ, मेरी पूरी हिस्ट्री, मेरी पूरी जर्नी, सारा जितने लोगों से भी हम मिले, जो भी हुआ, अपनी वीकनेसेस कहें, अपनी स्ट्रेंथ्स कहें, जो भी, ये सारा कुछ ऐसे अंदर में भरा हुआ है. और जब हम गहराई से देखते हैं तो रियलाइज होता है कि ये तो बस एक ड्रामा है, ये ड्रामा चल रहा है, मैं आत्मा इसमें पार्ट बजा रही हूँ. आई एम एक्टिंग इन दिस ड्रामा. सो माई रियलिटी, my story is eternal. I am a soul. I live in my home of light. I've come from there. I've come from there into this physical world, and all of us are the same. And we also know that there will be a time when we will leave this body. We will go back to our home. So for this story, for this reality to stay real, is what it's really, to go beyond, to then stay beyond. Ek hai to fight with the waste thoughts. I can keep on fighting. I can maybe have momentary victories, but then long term, I will still keep on battling. जिसी को बाबा कहते हैं क्षत्रिय के संस्कार, जो कि है चंद्रवंशी के संस्कार. The silver age, right? And that's what Baba says, that like even today, Baba said, like, the moment I create a question, I come in the queue of silver age. And so that sanskar is of fighting. And the golden age sanskar is to just stay in reality. I, the soul, I stay in my reality, in my truth. And in that experience, I stay beyond. I go beyond, I stay beyond. And so this, ऐसे तो this is very easy, है ना. जिसी को बाबा कहते देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, अशरीरी, आत्मा का पहला पाठ. इसी को बाबा कहते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते अपने आप को आत्मा निश्चय करो, आत्मा समझो, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो. अल्टीमेटली इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग. पर अंदर से रियलाइजेशन होना कि शरीर की दुनिया, कर्मेंद्रियों की दुनिया, ये अलग है, और मैं आत्मा, मेरी दुनिया, मेरी रियलिटी, मेरा घर, मेरी नेचर, ये अलग है. जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, टू जस्ट वेरी नेचुरली स्टे बियॉन्ड. तो बाबा का, जैसे आज भी हमने सुना निरंतर योग, तो ब्रह्मा बाबा का ये रहा निरंतर योगी. योग लगाने वाले नहीं, पर निरंतर योगी. नेचुरली उनकी स्थिति योग युक्त सभी ने देखी, अनुभव भी की. तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में हम देखें भाई, तो दो तरह के एफर्ट्स है. एक है कि लड़ाई करना, और एक है कि ट्रूथ में रहना. When I go beyond, stay beyond, I'm really staying in the truth. Then there is nothing I need to fight with inside the mind.
एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ गॉड। परमात्मा का जो मन है, जो परमात्मा का मन है, वो उस क्लैरिटी में ऑटोमेटिकली रहता है। जैसे हम आत्माएं यहाँ आती हैं तो फंस जाते हैं। जब हम कहते हैं ना कर्म बंधन है, फंस गए, दुख है, शांति, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो जो हमने स्टोरी क्रिएट कर रखी है, हम उसी के अंदर जी रहे हैं। सो थॉट वाज टुडे, हम आज ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ से हम कुछ एक इंस्पिरेशंस लेते हैं और विल ट्राई टू सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिज एफर्ट्स, स्पेशली टुडे, है ना। आज ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ से हम क्या देख सकते हैं, सीख सकते हैं। So one is this, says Baba's world. By Baba we mean God, है ना, परमात्मा। Baba's world is above and beyond the story. जो कहानी चल रही है, जो नाटक चल रहा है, नाटक की दुनिया अलग है और परमात्मा की दुनिया इससे अबव है, यानी ऊपर है, और बियॉन्ड है, यानी परे है। He enters the story as a visitor with the only purpose to awaken souls. यानी परमात्मा जैसे एक गेस्ट के रूप में, है ना, आते हैं। उनका पर्पस ये है कि हर आत्मा को जागृत करें। स्टोरी इज लिमिटेड बाय एक्सपेक्टेशंस, challenges, fears, it is karam bandhan. But life outside the story is filled with freedom, security, zero expectations, and zero desires. That is karmatit. है ना। तो स्टोरी के अंदर एक्सपेक्टेशंस भी है। मैंने कुछ किया तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि फीलिंग आई कि मैंने कुछ किया, स्टोरी में है तो, है ना। फिर चैलेंजेस, किसी चीज में विघ्न पड़ रहा है, ये चैलेंजेस हुआ। फिर उसके रूप फिर फियर होगा, डर लगेगा। तो ये सारे इमोशंस हैं कर्म बंधन, जो कि हम जब मन से इस स्टोरी के अंदर है तो ये सब अंदर फील होता है। यानी हम अंदर की लाइफ, जो मन के अंदर की लाइफ है, वो बॉन्डेज में है। बट लाइफ आउटसाइड द स्टोरी, जो इस कहानी के बाहर की जो दुनिया है, वहां पे फ्रीडम है, मुक्ति है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। There's nothing I the soul can lose here. And expectations भी ऐसे नहीं कम, पर zero. There's no expectation at all. And zero desires, कोई चाहना नहीं है, क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं ना इस दुनिया से। तो वो जैसे स्टेट है वो कर्मातीत। My truth, my reality, my dignity all exist outside the story, naturally and eternally. जो मेरी रियलिटी है वो स्टोरी के अंदर नहीं है। जस्ट एन एक्टर, एक्टर की रियलिटी वो ड्रामा के प्ले के अंदर नहीं है, उसके बाहर है। ऐसी मुझ आत्मा की रियलिटी इस ड्रामा के अंदर नहीं है, इस ड्रामा के बाहर है। जैसे हम एक रूम में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, है ना, दूसरे रूम में जाते हैं, तो वैसे ही जैसे ये अंदर से फीलिंग कि चलो हम इस ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं, पर दरवाजा ओपन किया और अपनी दुनिया में चले गए। वो हमारी दुनिया है, ये स्टेज है, वो हमारा घर है, वहां पे हम रहते हैं, वहां से हम आए हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल अवेयरनेस है, इसमें बहुत मेहनत की बात नहीं है। इट्स नेचुरल अवेयरनेस कि हम वहां के हैं और वहां से यहाँ आए हैं एज अ विजिटर, एज अ विजिटर। तभी हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कि हम सब सूक्ष्म वतन वासी हैं। हम सूक्ष्म वतन में रह रहे हैं। We live in the subtle region, इस फिजिकल दुनिया से परे।
तो ये एफर्ट यानी ये अवेयरनेस, जो आज भी बाबा ने कहा कि स्मृति है ना, स्मृति दिवस। तो क्या क्या स्मृति? बाबा ने तो कहा ब्राह्मण जीवन की सारी स्मृतियां हमें याद रहे, उसी की फिर माला सिमरन के रूप में सिमरी जाती है। पर ये स्मृति says, the more I love Baba, I begin to spend time with him, begin to admire him and his unconditional nature of giving. जितना हम बाबा से, परमात्मा से प्यार का अनुभव करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाबा को एडमायर करते हैं, और बाबा के है ना जो नेचर है देने की, उसको अनुभव करते हैं। Life outside the story is beautiful, where Baba and his world are real and not just a practice or meditation. है ना? तो कई बार हम इस वर्ड में भी अटक सकते हैं, प्रैक्टिस है, मेडिटेशन है, पर एक्चुअली वो रियलिटी है। The more I live outside the story, Baba's qualities are activated in the soul in a natural way without any effort. तो जितना हम बाबा की दुनिया में बाहर, इस स्टोरी के बाहर रहते हैं, तो जो बाबा की संस्कार है वो नेचुरली आत्मा के अंदर एक्टिवेट होने लगते हैं बिना किसी एफर्ट के। Then it says, Avyakt Bap Dada lives outside the story. Sakar Baba made the effort to consciously live outside the story, and the month of January inspires us to do the same. तो कॉन्शियसली ये है ना, अवेयरनेस में रहना, मैं वहां से यहाँ नहीं, मैं आत्मा परम धाम में कहीं, या मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में रहता हूँ, और वहां से इस धरती पर मैं आया हूँ, बस इतना ही है। इसी को बार 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 हम अनुभव करते जाते हैं। तो कॉन्शियसली लिव आउटसाइड द स्टोरी, कॉन्शियसली। तो जो भी हम कहें, वाइसेस कहें, दे आर ऑल हार्ड वायर्ड। तो जितना हम इस दुनिया का अपने आप को समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, तो उतना जो भी विकार है वो नेचुरली एक्टिवेट हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स द नेचुरल नेचर ऑफ अ ह्यूमन, है ना। टू बी वरीड, टू बी एंग्शियस, जो भी विकार है वो एक नेचुरल बन जाते हैं। पर जब हम आत्मा में टिक जाते हैं, तो जो आत्मा का नेचुरल नेचर है और जो बाबा का भी नेचुरल नेचर है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास, जो आज भी बाबा ने कहा, बहुत काल का अभ्यास, यानी जो संस्कार है ये बस पक्का पक्का हो जाए। ये शरीर का आधार लिया है हमने, इस शरीर में आए हैं और फिर वापस जाना है। His body is the instrument that keeps me in the story. यानी हम आत्माएं इस कहानी में हैं, तो कैसे हैं? शरीर के माध्यम से। Without the body, I'm naturally beyond the story. ये जब शरीर में नहीं है, तो नेचुरली हम इस कहानी के परे हैं। The story is now coming to an end. It is time to leave this body to become bodiless. जैसे ड्रामा का फाइनल सीन चल रहा होता है, तो एक्टर्स को पता होता है कि अभी, है ना, ये कॉस्ट्यूम चेंज करना है, अपने रियल, है ना, कॉस्ट्यूम में आ जाना है। तो वैसे ही जैसे ये जो शरीर है, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बस शरीर से, देहभान से हम परे हो जाते हैं, तो हर चीज से हम
ऑटोमेटिकली परे हो जाते हैं। तो चले हम 1 मिनट अनुभव करें कि मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं और मुझ आत्मा ने ये 5 तत्वों का पुतला या कठपुतली या गाड़ी ये धारण की है। इसको हम शरीर कहते हैं। इट्स कॉल्ड अ बॉडी। और जैसे हम गाड़ी को छोड़ सकते हैं, गाड़ी के अंदर जा सकते हैं, दरवाजा होता है उससे हम गाड़ी के अंदर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। तो वैसे ये जो शरीर है ये बस एक गाड़ी ही है और हम आत्माएं इस गाड़ी के अंदर आते हैं पार्ट बजाने, पर गाड़ी से बाहर भी हम एट विल जा सकते हैं। अनुभव करें हम अपने आप को इस शरीर के बांध से परे। ऊपर से ही बस थोड़ा देखे नीचे, ये शरीर है, ये शरीर अलग है, 5 तत्वों का पुतला है और मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु में इसको चलाने वाली ड्राइवर हूं। और अभी थोड़े समय में ये जो शरीर की दुनिया है ये बदलने वाली है। तो अभी टाइम है एक जो टेम्पररी शरीर को छोड़कर अपने घर जाने का और फिर नए शरीर में आने का। तो ये कॉन्शियसनेस जैसे नेचुरल। द मोमेंट आई लीव दिस बॉडी, जिस समय मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, आफ्टर अ फ्यू डेज और इवन टुडे, आज भी तो हो सकता है, would be extremely special and unique. All other times I had left the body to come back in the story, but this is the only time when I leave the body to go back beyond the story. My Baba and my home. है ना? तो हम आत्माओं ने सतयुग से लेके कितने सारे जन्म लिए अभी तक, अलग अलग शरीर, अलग अलग नाम रूप धारण किए, पर जब भी अभी तक हमने शरीर छोड़ा तो वापस इसी दुनिया में आए। पर अभी जब हम अंतिम, जैसे संगम युग का अंत है, तो हम शरीर छोड़कर अपने घर परम धाम जाएंगे, है ना? हाँ, हाँ। तो ये बहुत ही सुंदर इस समय आने वाला है जब हम आत्माएं ये शरीर की दुनिया, शरीर को छोड़कर अपने घर, अपने वतन, अपने देश जाएंगे। हाँ, तो ये हम अनुभव करें, फील करें कि हमने कितने सारे जन्म लिए और हर जन्म में हमने जब शरीर छोड़ा तो हम फिर दूसरे शरीर में इसी दुनिया में आए। पर अभी अंतिम जो हमारा समय है, अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और अपने घर जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट दैट इज गोइंग टू कम। तो हम देखें अपने आप को कि मैं आत्मा जैसे ये पुराना शरीर छोड़ रही हूं और अपनी दुनिया में, अपने वतन में, बाबा के पास, बाबा की दुनिया में मैं आत्मा प्रवेश कर रही। Emerging my last and final moment in this story. आज भी बाबा ने कहा कि अंत में, है ना, एकांत, यानी शरीर हम बाबा की याद में छोड़े और इसी का ही, है ना, स्तंभ या स्मारक कहें, शांति स्तंभ
कहे या आत्मा को शक्तिशाली बनाने का स्तंभ कहे, वो भी यही है, इसी यादगार में कि ब्रह्मा बाबा का अंतिम संकल्प, अंतिम स्मृति क्या रही. So emerging my last and final moment in this story, the moment when I leave the body, zero attachments, just a sense of gratitude to Baba and Drama for a beautiful journey of 5,000 years, a sense of completion and saying the final goodbye with only one word in my mind, my heart, my eyes, Baba. जब हम आत्माएं ये अंतिम शरीर छोड़कर, है ना, तो जैसे हमारी पूरी यात्रा फिनिश हो गई. 5,000 साल हो गए हमें इस ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते. बहुत ही सुंदर यात्रा रही. वी हैड अ ब्यूटीफुल टाइम, बहुत एडवेंचरस भी रही, बहुत खुशी का भी अनुभव किया. पर अभी टाइम है जैसे ड्रामा को अलविदा कहने का. दिस डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो बाबा के लिए शुक्रिया, ड्रामा के लिए शुक्रिया. और हम जैसे बस हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे नैनों में बस एक बाबा, एक परमात्मा, और परमात्मा की ही याद, और बाकी जैसे सब कुछ पीछे, बाकी सब कहानी है, बाकी सब जैसे हम उसको अलविदा कहते हैं. आई एम जस्ट सेइंग अ गुड बाय टू द एंटायर ड्रामा ऑफ 5,000 years. तो राइट नाउ अभी हम उस मोमेंट को इमर्ज करते हैं कि जो फाइनल मोमेंट हम आत्माओं का इस ड्रामा में, और वो अभी आने ही वाला है. तो कितना वो सुंदर घड़ी होगी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया, है ना, तो वैसे ही हम आत्माएं भी ये अनुभव करते हैं. फाइनल मोमेंट, हम आत्माएं ये पूरे 5,000 वर्षों की इस यात्रा को अलविदा कह रहे हैं. We are saying goodbye to this beautiful expedition that we embarked upon. और बस एक बाबा, क्योंकि बाबा ही है जो मुझ आत्मा के सब कुछ है. बाकी हर चीज तो ये ड्रामा में चल रही है. तो मैं आत्मा बस एक बाबा की याद में, बाबा के साथ जैसे बाबा के घर जाते हो. The journey has ended. It's been a great adventure for 5,000 years with moments of happiness, bliss, and enjoyment. It's time for the story to end and for me to meet him face to face. ये समय आता है जब हम आत्माएं बाबा से सम्मुख मिलने वाले हैं, without any limitations of the physical world. A final goodbye to all the souls with whom I came into connection for 84 lives. तो जितना हमने जन्म लिए, सारी आत्माओं के साथ हम कनेक्शन में आए, तो हम सभी को जैसे अलविदा कहते हैं. They all have given a meaning to this life, a feeling of gratitude towards the elements or their unconditional friendship for 5,000 years. तो प्रकृति को भी धन्यवाद कि प्रकृति ने भी, है ना, 5,000 सालों से हमें कितना सेवा हमारे की.
a final goodbye to this most amazing spacesuit that has enabled me to experience the beauty of this wonderful play. तो ये जो स्पेस सूट है, शरीर है, इसको भी बहुत दिल से शुक्रिया कि इसने भी मुझे ये बहुत थ्री डिमेंशनली जो दुनिया है इसको दिखाया और इस नाटक का पार्ट का अनुभव कराया। और अभी टाइम आया है कि इस शरीर को भी, है ना, छुट्टी, शरीर से भी छुट्टी लेने का, शरीर को भी थैंक यू बोलने का। तो हम शरीर को भी थैंक्स करें, हर एक आत्मा को थैंक्स करें, इस पूरे ड्रामा को थैंक्स करें। और मैं आत्मा जो भरपूरता से, संपन्नता से, संपूर्णता से इस ड्रामा में आई थी, मैं उसी रीति संपन्न, संपूर्ण, भरपूर, बाबा के समीप, बाबा के समान आत्मा जैसे इस ड्रामा से छुट्टी लेते। वेट अ सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड हम रुकते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट इन द साइकिल इज येट टू कम। तो जो सबसे सुंदर मोमेंट है, पल है, वो भी आने ही वाला है। When I meet him in the angelic world before going home, he has been waiting for a long time just for me. बाबा, बाप दादा हम कहें, फरिश्ते स्वरूप में मेरे लिए वेट कर रहे हैं। सबसे सुंदर समय जब बिना शरीर के, बिना शरीर के भान के, मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में बाबा से मिलन मनाते। बस एक बाबा, एक मैं, और कोई नहीं। Dear story, goodbye, it's time to go. Baba is calling me to come home with him. We will meet again in the same way in the next cycle. तो छुट्टी हम ड्रामा को दे कि हम फिर से मिलेंगे, फिर से, है ना, अगले क्लब में फिर से हम पाठ बजाएंगे। और ये टाइम है जब बाबा मुझ आत्मा को अपने पास बुला रहे हैं और मैं आत्मा बाबा की याद में उड़ते उड़ते बाबा के साथ बिल्कुल नजदीक, समीप, समान। हम अनुभव करें कि हम आत्माएं कैसे बिल्कुल बाबा के समीप हैं, बाबा के समान हैं। ड्रामा को हमने अलविदा कह दिया है। माँ बाबा के अंतिम तीन शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी, न व्यक्ति, no person. Let me connect to the real person sitting behind the mask of every person I interact with. That real one is worthy of supreme respect because Baba loves him dearly. The elusive person is just a corpse body, whereas real person is the living energy. I just acknowledge and respect its pure presence, the Nirakari stage. तो हर एक के शरीर रूपी, है ना, मास्क से परे जो चैतन्य आत्मा, जिसको कि परमात्मा बहुत प्यार करते हैं,
और जो कि बहुत ही सम्मान के पात्र है, और जो बाहर दिखाई देता है वो तो एक जैसे कॉर्प्स है ना। जो शरीर दिखाई देता है उसमें तो जान नहीं है, और जो रियल पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी है। I just acknowledge and respect its pure presence. तो ये उस आत्मा की प्रेजेंस को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, निराकारी स्थिति। ना व्यक्ति, व्यक्ति से परे, बियॉन्ड पर्सन, ना कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति है ही नहीं, ना कोई व्यक्ति है, ना व्यक्त है। हम आत्माएं अव्यक्त में है, व्यक्ति से परे, व्यक्ति के भान से परे। कोई भी व्यक्ति मेरे कॉन्शियसनेस को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि रियलिटी में तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, सब आत्माएं हैं। तो व्यक्ति से परे जाते व्यक्त भान से भी हम आत्माएं परे जाने का अनुभव कर रहे हैं, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। निर्विकारी, नथिंग पर्सनल, ना व्यक्तिगत, नथिंग पर्सनल। In reality, the only thing personal to us are our original sanskars of purity and love. जो सही में मुझ आत्मा का है वो है आत्मा की पवित्रता, प्रेम, ये जो संस्कार। Everything else is elusive and temporary. बाकी हर चीज जैसे एक भ्रम है, टेम्पररी है। When I operate from my original and divine sanskars, no form of vice, कोई भी तरह का विकार, which is a confused state of mind, where I feel story is the reality and I lose sight of truth, can touch the soul, the nirvikari stage. तो निर्विकारी, कोई विकार नहीं। विकार आता ही है जब हम इल्यूसिव चीजों को अपना मान लेते हैं। विकार इज अ कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, मन की उलझी हुई स्थिति, जहाँ की हम स्टोरी को ही रियलिटी समझने लगते हैं और ट्रूथ को भूल जाते हैं, वही विकार आता है। तो हम आत्माएं विकार से परे, निर्विकारी, वाइसलेस, ना व्यक्तिगत, मेरा कुछ भी नहीं, इस ड्रामा में मेरा कुछ नहीं। तो जब मेरा कुछ नहीं तो ना अटैचमेंट है, ना उससे लिंक्ड ईगो है, ना और भी कोई बातें हैं, ना व्यक्तिगत, ना कोई इच्छा है। और हम फिर चले अपने अंतिम स्थिति, निरअहंकारी, नो पर्सनालिटी, ना व्यक्तित्व। तो ना व्यक्ति हमारे कॉन्शियसनेस में, ना व्यक्तिगत, ना कोई व्यक्तित्व, नो पर्सनालिटी। ईगो क्लाउड्स द माइंड व्हेन आई एम अंडर द इम्प्रेशन ऑफ स्टोरी बेस्ड पर्सनालिटीज। इस कहानी के अंदर जो भी पर्सनालिटीज हैं, जब हम उसके ही अफेक्ट में, प्रभाव में रहते हैं, तो अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। The more I get absorbed in Baba's eternal personality of unconditional acceptance and allow myself to be loved by him, a beautiful state of mind emerges naturally, where any form of subtle ego ceases to exist, the nirahankari stage. Nirahankari sthiti.
तो जब एक बाबा का ही व्यक्तित्व और उसका ही प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ता है और किसी भी व्यक्तित्व का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, तो ये बहुत सुंदर मन की स्थिति इमर्ज होती है, निरअहंकारी, ना व्यक्तित्व, नो पर्सनालिटी। निराकारी, नो पर्सन। निर्विकारी, नथिंग पर्सनल। निरअहंकारी, नो पर्सनालिटी। तो मैं आत्मा इन सब से परे, ड्रामा से परे, बाबा के पास। Let me take time to experience the अव्यक्त merged in Baba's love. बाबा के प्यार में समाये हुए, let him be the only person, only personality, and the only one personal to color me and my life. Brahma Baba inspired us to experience these three stages as his final directions, and soon after he became a Vyakt. It is now time for us to do the same. तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये अंतिम स्थिति का अनुभव कर फिर अव्यक्त हुए, वैसे हम आत्माएं भी अभी निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन अपनी अव्यक्त स्थिति में अनुभव स्वयं को करें। It's time to fly back home with Baba. तो हम सभी फरिश्ते बन उड़ चले वापस अपने वतन। यही समय है डबल लाइट फरिश्ता बन इस दुनिया से परे बाबा के पास पहुंच जाने का। हम सभी आत्माएं, सभी फरिश्ते बाबा के पास, बाबा के वतन में पहुंच जाए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। Cha, thank you for your time, presence. Anyone would like to add, share any thoughts? Please feel free to. ओम शांति। भाई फैमिली, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छा, मतलब समय के हिसाब से कि इसकी सबको जरूरत है, हमको तो जरूरत है ही। और ये क्लास तो ऐसे रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी मेरे ख्याल से 2-3-4 घंटे बाद। इसको बार बार सुनने का, समझने का, इसको मतलब इसमें समाने का मतलब है कि इसको हम जितना बार सुनेंगे, जितना बार देखेंगे, उतना एक मतलब बहुत हेल्प मिलेगी अपना पुरुषार्थ में, अपनी स्थिति बनाने में, मानसिक स्थिति।
तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत थैंक्स फॉर इस क्लास के लिए। शांति। थैंक यू सौरभ भाई, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा सीखने को मिला। सब मतलब सब कुछ सिमिलर ही होता है जो हम सीखते हैं, बट फिर भी एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम अपनी एज एन एक्टर प्ले करने लगते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं कि सोल है। आई थिंक वीकली क्लास और डे इस तरह के रिमाइंडर्स फिर से हमें दोबारा से करते हैं कि हमें फिर से सोचना चाहिए कि व्हाट आर वी एक्चुअली। हाँ जी। That's so true. हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं। हम्म, बीच बीच में बाबा वही याद दिलाते हैं हमेशा हम कौन है। हम्म, थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Saurabh. Very beautiful class. इसको जैसे नरेश भाई ने कहा है, बार बार सुनना, अपनी स्थिति को और फॉरवर्ड करते जाना, उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू। ओम शांति। Thank you. ओम शांति सौरभ भाई, ये बूस्टर डोज की तरह से भी काम करेगा, जैसे बूस्टर डोज होती है ना जब। Booster dose. हाँ, बाबा के जैसे ब्रह्मा बाबा का आज का स्मृति दिवस जैसे हम सभी के लिए बूस्टर। और हम देखें जो आज मिलन की भी मुरली में बाबा ने कितना, है ना, पहला पाठ अशरीरी, ब्रह्मा बाबा ने जो पाठ पक्का किया उसी को बाबा ने कहा कि हमें, और है बहुत सहज, इसकी जब हम थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो बस नजर आता है कि तो दैट इज द ट्रूथ। ये शरीर तो हम है ही नहीं, ये शरीर तो बस एक पुतला है और ये हम चला रहे हैं और हम इससे एकदम अलग हैं। जितना ये हम थॉट्स इसकी थोड़ा गहराई में जाते जाते हैं, अंतर्मुखता में थोड़ा मनन करते हैं, तो फिर जैसे ऑटोमेटिक जैसे रियलाइजेशंस बाबा कराते हैं। जी। अच्छा, तो आई होप एवरीवन हैड अ ब्यूटीफुल डे। एंड अभी तो जनवरी मास और भी है, सो वी विल कंटिन्यू टू हैव ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस विद बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। तो अभी यहाँ से अभी थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, फिर मुरली। Sure. ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। ओम